तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की मजलिस आमला का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में मुनक्किदा इजलास में रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, MLCs व दीगर शरीक थे। इजलास के दौरान पार्टी को बुनियादी सतह से मजबूत बनाने और मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले इंतख़ाबात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा देही सतह से रियासती सतह तक कमेटियों की तश्कील और 27 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले पार्टी के सालाना इजलास आम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले कारपोरेशन के इंतख़ाबात पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। 12 फरवरी से टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम मुनक्किद होने वाली है। इस दौरान केसीआर ने तमाम लीडरों से रुकनियत साजी को कामयाब बनाने पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में क़यादत की मुंतकिली पर क़यास आराई की जा रही थी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि वो सेहतमंद है। फिल वक्त 10 साल तक इनमें चीफ मिनिस्टर के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने की ताकत मौजूद है। और तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमों को शुरू किया है, जिसकी साबिक़ में मिसाल नहीं मिलती। हैदराबाद के नेहरू ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर अक़लियत दोस्त हैं। डेवलप చేసిన ఇంక్లూడ్ మైనారిటీ కమిటీ ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ఓన్లీ ఓట్ బ్యాంక్లో యూజ్ చేశారు. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు ఆయన హక్ ఇచ్చారు, ఆయనకు డెవలప్ చేశారు, షాదీ చేశారు. చాలా మంచి స్కీమ్. డెలివరీ అయితే 12,000 రూపాయలు, 13 అమ్మాయి అయితే 13,000 ఇస్తున్నారు. కేసీఆర్ కిట్ ఇస్తున్నారు. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత బాగా ఉంది, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదో మన స్టేట్లో ఉంది. నెక్స్టిజం మొత్తం అయిపోయింది. పవర్లో సర్ప్లైజ్ ఇస్ట్ అంటే మన స్టేట్ ఉంది. ఫ్రీ పవర్ ఇస్తున్నారు ఈ చాలా ఫార్మర్స్కి. 100% అంటే మా ఫార్మర్స్కి కరెంటు అంటే ఒక పైసా కలెక్ట్ చేస్తారు. ఎంత ముందు వచ్చేప్పుడు ఫైరింగ్ చేశారు తెలుగుదేశంలో, 10 ఫార్మర్స్ చల్లిపోయినా. ఓన్లీ ఫర్ 2 అవర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే ఇప్పుడు 24 అవర్స్ ఇస్తున్నారు. మా ఆనబుల్ సింగ్ గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేసిన ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్, వాటర్ కోసం, ఫార్మర్స్కి వాటర్ కోసం, డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం, మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగరత, ఇంత పెద్ద స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. అందరూ ముస్లిం చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. ఈరోజు అందరూ మా కేసీఆర్ గారు థ్యాంక్స్ చెప్పినాక ఇక్కడ జమ అయినా ముస్లిమ్స్ అంటే చాలా సీఎంకు లైక్ చేసిన లీడ్ మ్యాక్సిమం అంటే ముస్లిం అమ్మాయిస్ ఉన్నారు. ముస్లిం అమ్మాయి అబ్బాయి అంటే ముస్లిం మొత్తం ముస్లిం ఈ తెలంగాణలో అంటే 98% అంటే సీఎం గారు కేసీఆర్ గారుకు టీఆర్ఎస్ పార్టీకు లైక్ చేస్తున్నారు, ఓట్ బి ఇస్తున్నారు. ఒక మాట ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, కేసీఆర్ గారు ఉండాలి ముస్లింకు అంటే మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉండాలి. ఇప్పుడు లేదు, ఇంకో 20 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఏ పార్టీ వస్తలేదు. అందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీకు లైక్ చేస్తున్నారు. మా ఆల్ ఎవరెవరు వచ్చినా ఇక్కడికి చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మంది వచ్చిన అమ్మాయికి పేరుతో థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మీడియా మిత్రులకు థ్యాంక్స్ చెప్తాను. ముస్లింలకు ఒకటి పార్టీ ఉంది, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. తప్పకుండా ఆయనకు ఫ్యూచర్లో బి 100% సపోర్ట్ చేసినాక అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. और ముస్లిం చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. और కేసీఆర్ గారు ముస్లింకు ఎంత డెవలప్ చేశారు, ఎంత ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎవరు డెవలప్ చేయలేదు. కేసీఆర్ సాబ్ అంటే మహాన్ లీడర్ ఉన్నారు. అందరూ ముస్లిం ప్రజలు ఎవ్రీ టైం ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. కేసీఆర్ లాంగ్ లివ్, కేసీఆర్ హెల్త్ కోసం, కేసీఆర్ పవర్ కోసం ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎవరెవరు వచ్చినాకి మీడియా మిత్రులకు థ్యాంక్ यू। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की मजलिस आमला का इजलास हुआ। पार्टी की कारकर्दगी को लेकर और आगे की हिकमत अमली को लेकर वहाँ पर बातचीत हुई और उस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे हैदराबाद नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़ चुके हैं। संजय, आज काफ़ी बड़ी मीटिंग रही पार्टी की तरफ से, क्या कुछ निकल कर आया है पार्टी में, पार्टी की बातचीत में? जिलानी तकरीबन 2.5 घंटे ये बैठक चली है। टीआरएस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी और इतना हाइप हो चुका था इस मीटिंग को लेकर, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जो है इसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। और ख़ास करके जो तेलंगाना में जो नेतृत्व है उसको परिवर्तन को लेकर, यानी केटीआर को मुख्यमंत्री को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे जी। लेकिन मीटिंग में मुख्यमंत्री केसीआर ने स्पष्ट तौर पर कह दिया जी कि इस तरह की कोई भी कयासबाजी ना लगाए और अगर कोई इस तरह की बातें करता है पब्लिकली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री केसीआर ने टीआरएस के
सारे नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया है कि वो 10 साल तक नेतृत्व करने की स्थिति में है। उन्होंने साफ किया कि उनकी सेहत एकदम सही है जी। उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वो जो है वो अभी इस समय तेलंगाना में जो गवर्नमेंट है या फिर टीआरएस है उसकी जो कमान संभालने की स्थिति में है। लेकिन संजय, कुछ दिन पहले, बल्कि कहूं कि काफी दिनों से पार्टी के ही बड़े लीडर, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, उनका ये कहना था कि केटीआर में भी वो सलाहियत है, काबिलियत है, वो सीएम बन सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि केसीआर जो है सीएम पद से हटकर नेशनल पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे, वो आगे की सोच रहे थे। ऐसी बातें बहुत दिन से गश्त कर रही थी। आज अचानक सीएम का इस तरह से ऐलान कर देना क्या दर्शाता है, क्या चीज समझ में आए इसको लेकर? जिलानी दरअसल 2-3 बातें हैं। अभी अगर इस समय किसी तरह से जो सत्ता है, वो जो नेतृत्व है यानी मुख्यमंत्री पद है, वो अगर केटीआर को दे दिया जाता है तो उस सूरत में केसीआर क्या करेंगे, ये एक बड़ा जो गैप क्रिएट हो जाएगा, जो खालीपन क्रिएट होगा, वो कहाँ, वो किस जगह कंपनसेट होंगे। नेशनल पॉलिटिक्स में अभी कोई सिनेरियो इस तरह का नहीं नजर आ रहा है कि किसी तरह का कोई थर्ड फ्रंट बनाने में या कोई बीजेपी विरोधी या फिर किसी अदर गठबंधन को लेकर केसीआर काम कर सके। चुनाव में अभी काफ़ी समय है, 2.5 साल के आसपास का समय है, तो इस समय को इतने लंबे पीरियड तक वो कैसे पॉलिटिक्स से और एकदम जो डायरेक्ट जो है ना गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट से बाहर रह के कैसे चलेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा एक बड़ा चीज़ जो है यहाँ पर तेलंगाना में, वो ये लगातार मांग उठती जा रही है कि वो केसीआर ने वादा किया था कि बीसी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री होगा जब तेलंगाना आंदोलन हुआ था जी। अब जैसे ही वो केटीआर को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा करेंगे तो उसके बाद वो सारी बातें उठना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। जिस तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका एज मिलेगा और ये इस तरह की कोई भी चीज़ केसीआर फिलहाल नहीं करना चाहते। जीएचएमसी के चुनाव में जिस तरह से टीआरएस का प्रदर्शन खराब रहा है, उसके बाद केटीआर का प्रमोशन कर देना, यह भी बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। तो इन सारी बातों को शायद उन्होंने ध्यान में रख के जो है ये स्पष्ट संकेत दिया है कि वो कहीं से भी तेलंगाना में कोई नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद केसीआर रहेंगे और जिस तरह से इसी के तरह से वो जो है ये टीआरएस को आगे बढ़ाना है। मैं कुछ बातें और बताना चाहूँ जो इस मीटिंग में बिल्कुल, इसके अलावा मीटिंग में और क्या कुछ तय हुआ है आगे के लिए? जी वही जिलानी, दरअसल मीटिंग में जो टीआरएस पार्टी है वो इस समय ज़बरदस्त दबाव महसूस कर रही है। दुबका इलेक्शन में जिस तरह से जो बीजेपी को जीत हासिल हुई और उसके बाद जीएचएमसी इलेक्शन में जितनी ज़बरदस्त सफलता बीजेपी को मिली है, उसने कहीं ना कहीं टीआरएस के कैडर का मोरल डाउन किया है। अब उस मोरल को उसको अप करना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कैडर का मॉरल मजबूत नहीं हुआ तो वो चुनाव में या पार्टी का जो प्रेजेंस है वो नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। बीजेपी आक्रामक मोड में है और जाहिर तौर पर फिर सारे लोगों को बुलाकर केसीआर ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में कहा कि हर विधानसभा में 50,000 नए कार्यकर्ता टीआरएस में जुड़ने चाहिए, 50,000 नए लोग जुड़ने चाहिए। यानी एक बड़ा वर्कफोर्स जो है वो टीआरएस को उसकी तलाश है। नया जो है वो नया सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर 12 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जीएचएमसी के चुनाव के लिए मेयर या डिप्टी मेयर पद के जो नाम हैं, कौन मेयर या डिप्टी मेयर बनेगा, उसके नाम का ऐलान 11 फरवरी को ही करेंगे जिस दिन चुनाव होना है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के दोनों के नाम के ऐलान की जिक्र किया। इसका मतलब है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही टीआरएस पार्टी से होगा। यानी एआईएमआईएम के डिप्टी मेयर को लेकर किसी तरह की कोई अभी बात जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में नहीं आई है। शायद हो सकता है कि अपने दम पर टीआरएस जो है जीएचएमसी में अपने मेयर और डिप्टी मेयर को बनाने में कामयाब हो जाए। इस तरह की रणनीति मुख्यमंत्री केसीआर ने तैयार की है। कुल मिलाकर सिर्फ पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिशें सरकार पार्टी की तरफ से हो रही है। लेकिन संजय, एक चीज और है, हालिया बजट में तेलंगाना को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। 3 साल से पार्टी सरकार की तरफ से, केसीआर की तरफ से खत भी लिखा गया था मरकज को कि हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए मदद की जाए, लेकिन नहीं की गई। ऐसा इल्ज़ाम आ रहा है टीआरएस की जानिब से। क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है?
देखिए जिलानी, बजट जो आम बजट होता है वो हर राज्य की और देश की पूरी ज़रूरत और एक बड़े बिग पिक्चर में बजट तैयार किया जाता है। बिल्कुल। इस तरह के एलिगेशन जो सत्तारूढ़ पार्टी और खास करके केंद्र से अलग किसी राज्य में कोई सत्तारूढ़ पार्टी है तो उसके पास ये हमेशा ही हथियार रहता है कि उसको वो चीज़ नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जी। तो ये चुनाव में या किसी भी एजेंडे पे करना तो जाहिर तौर पर टीआरएस इसका इस्तेमाल करेगी जी। लेकिन जो बजट है, बजट को लेकर स्पेसिफिक कोई बात करना जनता को सीधे समझ में बजट की टेक्निकलिटी नहीं आएगी, ये बात केसीआर बहुत अच्छे से जानते हैं। जी। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहला जोर इस बात पर दिया है कि पहले सदस्यता अभियान बढ़ाओ, पहले टीआरएस की प्रेजेंस को मजबूत करो, जी। उसका कैडर को और ज़्यादा मजबूत करो, इंटैक्ट करो और लोगों में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरोसा हो कि वो जीत सकते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि जो एमएलसी के चुनाव हैं वो हम जीतने जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया, जो पार्टी के नेता हैं उनको भरोसा दिलाया कि टीआरएस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। जी। जी। तो कहीं ना कहीं एक जान फूंकने की कोशिश है, फिर से पार्टी को ये मजबूती देने की कोशिश केसीआर की तरफ से की गई है जी। और इसी वजह से ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। किसी तरह के नेतृत्व परिवर्तन की बात दिमाग से निकाल दें, जी। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो जाएं और आने वाले किसी भी तरह की चुनौती, राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी मजबूत रहे। जी। ये पूरा संदेश केसीआर ने अपने जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में देने की कोशिश की है। जी संजय, एक चीज और है, जैसा कि आपने कहा कि पार्टी को मजबूत करने की हिकमत अमली जो है केसीआर की तरफ से चल रही है। तो एक बात ये भी आ रही है कि केसीआर जो है डिस्ट्रिक्ट, तकरीबन तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट का वो उन्होंने दौरा करने की बात कही है और आगे जाके खम्मम में भी देखिए बल्दिया के इलेक्शंस होंगे और नागार्जुना सागर का भी जो है ज़मीनी इंतखाब होना है। तो इसको लेकर क्या कुछ बातें वहां पर हुई हैं? देखिए जो बड़ा एलिगेशन जो केसीआर के ऊपर बीजेपी या फिर कांग्रेस के लोग लगाते हैं कि वो जो अपनी जो पूरा गवर्नेंस है वो अपने जो प्रगति भवन है, जो मुख्यमंत्री का आवास है, वहाँ से बैठ के चलाते हैं, यानी वो सड़कों पर नहीं निकलते, वो जनता के बीच में नहीं जाते। यही सबसे बड़ा एलिगेशन जो है जी माफ कीजिएगा जी, वो बीजेपी लगातार लगाती है और इसी एलिगेशन के को ध्यान में रखते हुए अब जाहिर तौर पर केसीआर को आगे आना पड़ेगा, बाहर लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और शायद ही यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से हमको 2 संदेश लगातार आए कि 10 तारीख को केसीआर का क्या प्रोग्राम है। आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में भी उस प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया गया जी। तो जाहिर तौर पर अब केसीआर का लोगों से जो इंटरेक्शन है वो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बढ़ेगा जी। वो इस तरह की पब्लिक मीटिंग या लोगों के बीच जाएंगे ताकि लोगों से कनेक्ट जो वो फिर से स्थापित हो सके और लोगों को जो खास करके विपक्षी पार्टी है उनको जो है वो हमला करने का मौका ना मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसील से आपने पूरी रोशनी डाली आज की इस मीटिंग पर। तो जैसा कि संजय ने बताया कि 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि केसीआर ने क्लियर किया है कि आइंदा 10 सालों तक मैं सेहतमंद हूं और मैं इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के अभी लायक हूं, काबिल हूं और सेहत मेरी ठीक है। इस पर कोई कयास आराई ना तो पार्टी की तरफ से की जाए ना आवाम के बीच की जाए। दूसरी बात, मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर 11 फरवरी को ही खुलासा होगा कि क्या कुछ करना है। उसको लेकर अंदरूनी तौर पर बहुत सी चीज़ें चल रही हो लेकिन क्लियर अभी नहीं किया गया। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब के नाम और खासकर नामों का ऐलान 11 फरवरी को ही होगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कोठी में कल अचानक आग लग गई। सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में आंध्रा बैंक के करीब मौजूद रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने करीब में वाक़ 6 दुकानों को अपनी लपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। यह हादसा आधी रात के बाद पेश आया। फायर ब्रिगेड के अमले ने बताया कि जांच जारी है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। साहब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पे, कोर्ट के केसेस चल रहे, कोई ना कोई जानबूझ के करे। 47 ईयर से हमारा शॉप है वहाँ पर, आज तक कहीं के ना दीपावली को कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग आज फर्स्ट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हुआ। हम भगवान से और आजू बाजू सब लोगों से प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने के, फौरन हमारा दुकान बनाओ और जो भी इसको आग लगाया या इसका इंटेंशनली करा उसको कड़ी सजा देना। 50 साल, 45 साल, 60 साल, 40 साल के है पूरे दुकान। हम पूरे 6 से 7 जने जितने भी दुकान वाले हैं यहाँ पर ही बैठने वाले। पैसा
वो तो स्टॉक जो भी है पूरा जीएसटी पेड रहता, पूरा बिल रहता, पूरा इनकम टैक्स में भरे सो है, पूरा पेपर्स रेडी है, पेपर रहता उसका। अब इतना ऊपर ऐसा हैंड टू हैंड मैं कैसा बोलूं, पहले तो मैं सदमे में हूँ क्योंकि 47 ईयर से आज तक कभी भी नहीं हुआ ऐसा। फोन करे तो आके दिए तो चला नहीं था, पूरा देखे तो कोई नहीं करे जरा था, कहीं तो आज लगी नहीं बोला था, अब तक नहीं लगी, 5 साल 7 साल से बैठते था हम, आज ये लगी नहीं था, को तो लगा दिया वैसा होगा था ये पूरा, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ तब हम 10:30 बजे बंद करते थे, 10:30 बजे तो कुछ भी नहीं था, हम घर को जाके खाना खा रहे थे, फोन आया आज लगी बोल तो फिर भाग के आया मैं लगा पूरे, एक नहीं 2 दुकान आया था, एक रेडीमेड की एक कपड़े की है। हमारा नहीं बोलते भी था 40 लाख का माल था, 40 लाख का माल उसमें, 2 दुकान का था मेरे, 2 दुकान का मेरे बड़ा भाई है ये मेरा छोटा भाई है, 2 दुकानें साहब, पूरा देखे देखा आग चल के खाली एक फर्नीचर भी नहीं आया साहब, पूरा चलते रहे देख रहे साहब, पूरा देखे देखे तक जल गया साहब, इतना भी नहीं बचा साहब, इतना जर्रा भी नहीं बचा, पूरा राख हो गया साहब, देख रहे खाली तैर के पूरा फर्नीचर आगे कुछ देख रहे साहब, अब लेके पूरा बुझने के बाद। और पीछे का भी है था, पीछे भी चल रहा है, वो भी नहीं बचा, गोदाम का भी पूरा परसों ही माल भरा साहब, आज ही 2 दिन हुआ माल। इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान तेलंगाना की केसीआर हुकूमत के कामकाज पर कांग्रेस लीडरों ने नाराजगी जाहिर की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पीसीसी चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दिल्ली में दोस्ती और गली में कुश्ती का नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तौसी इजलास में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज मनिकम टैगोर ने कहा कि बहुत जल्द केसीआर की बदउनवानी को मंजर आम पर लाया जाएगा। दिल्ली में दोस्ती गली में गुस्ती, ओके, दिल्ली में दोस्ती गली में गुस्ती, and Chandrasekhar Garu has always betrayed Telangana. He has been before Narendra Modi and Amit Shah in Delhi whenever he goes to Delhi. It is not dosti, it is fear. Out of fear he is bending because he is afraid about the money he has earned out of these 6 years. The money which has to come to you, to Khammam's development, has gone into the commission for his family, particularly Chandrasekhar Rao's family. That money, they are afraid about CBI, ED and IT. Therefore only they are bending towards Amit Shah and Narendra Modi. Whenever Chandrasekhar Rao ji goes to Delhi, he bends before them. But why then Kishan Reddy and Sanjay Banti speaks all in हैदराबाद के इलाके नागौर में तेलंगाना आरटीसी मजदूर यूनियन का इजलास मुनक्किद हुआ। टीएमयू के सेक्रेटरी अश्वत्थामा रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान टीएमयू लीडरों ने मुलाजमीन पर काम के बोझ को कम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का भी मुतालबा किया। अश्वत्थामा रेड्डी ने मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ बिल में भी तब्दीली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना मजदूर यूनियन हुकूमत को अपने मुतालबात की रिपोर्ट पेश करेगी। 20 फरवरी तक मसाइल हल न होने की सूरत में तहरीक शुरू की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मसाइल हल करने की मरकज से मांग की है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि ये मामला सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि मुल्क के 130 करोड़ लोगों का है। कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने मरकज की मोदी हुकूमत से किसानों के मसाइल को हल करने की अपील की। के लिए उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उसके गवर्नमेंट ने उसको बुलाया 11 बार, मगर सरकार के पास नियत नहीं है उसका इश्यूज को सॉल्व करने का। इसीलिए इतने दबाव लगा के उसको आज की तारीख में विदेशी सपोर्ट है बोल के उसको ब्लेम करने की कोशिश कर रहे। जब फ्रीडम मूवमेंट में भी विदेशी का बड़े बड़े लोग जो डेमोक्रेसी चाहने वाला अपने मूवमेंट को, गांधी जी का मूवमेंट को सपोर्ट किया, मगर आज जब किसान का मूवमेंट को सपोर्ट करे तो वो विदेशी का हाथ है बोल के सोच रहे। हम कांग्रेस तेलंगाना में कोरोना वायरस के 150 नए मामले दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 34,805 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 150 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,95,581 हो गई है। रियासत में 1,939 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 800 अफराद होम क्वारंटीन में है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 25 नए मामले सामने आए हैं।
हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुर में पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 27 ग्राम वजनी 2 सोने के हार, सेलफोन और पेपर कटिंग ब्लेड हासिल कर लिया गया है। वाक़े के अंदरून 3 घंटे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों को गिरफ्तार किया। हमने अपने खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस की यंग जीनियस श्रीनिका से। आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसी यंग जीनियस से जिनके जब पैर थिरकने लगे तो खुद राजकुमार राव भी उनसे सीखना चाहते थे। आइए बात करते हैं श्रीनिका पुरोहित से और जानते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस में आकर कैसा लगा। श्रीनिका, नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। हाउ आर यू? गुड। डिड यू एंजॉय योरसेल्फ एट बायजूस यंग जीनियस? या, आई एंजॉयड अ लॉट। मुझे वहाँ बहुत मजा लगा। इट वाज अ न्यू प्लेटफॉर्म। वहाँ बहुत सारे लाइट थे, वहाँ बहुत कलरफुल था। दैट वाज रियली फन। राजकुमार राव के साथ आपने परफॉर्म किया ना, इम्प्रॉम्प्टू, कैसा था वो? सबसे अच्छा लगा जब राजकुमार राव अंकल के साथ मैंने वो एक्ट किया, जब मैं अभिनय कर रही थी माता यशोदा और कृष्णा का। अब आप क्या कर रहे हो? आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपियाड एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं। ओके श्रीनिका, आई एम गोइंग टू से बाय नाउ। थैंक यू। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का। विशाखा स्टील प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम अपोजिशन जमातों ने रियासत भर में तहरीक चलाने का फैसला लिया है। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के मरकज़ के फैसले के खिलाफ विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। और नीति आयोग की सिफारिश पर ही विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी का ऐलान किया गया, जिसके लिए काबीना में भी मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि तमाम अवामी इदारों को प्राइवेट करने का ऐसा कोई मनसूबा नहीं है, सिर्फ खसारे में रहने वाले इदारों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाया गया। और मरकजी बजट एक सेहतमंद और मजबूत भारत की तामीर का बजट है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपने दौरे विशाखापट्टनम के मौके पर मरकजी वजीर बराए उमूर खारजा एस जयशंकर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई मकसूपति की पॉलिसी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। विजयवाड़ा में खवातीन डॉक्टर्स ने मरकज़ के फैसले के खिलाफ IMA दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।